Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And in this lecture, we are going to discuss about the third type of blood cell, which are platelets or thrombocytes. We have discussed in the first lecture, we are talking about erythrocytes, or let's call that RBCs. Then I told you about leukocytes or WBCs, different type of leukocytes which are agranulocyte and which are granulocyte. And the third part of blood corpuscle is platelet. So today in this lecture, first we will be talking about platelets, what are platelets, how they differ from other red blood cell, what are the functions which are performed by platelet, and I will be making a chart of all the blood cells which we have learned, and I will be mentioning all the properties of those which will make you to learn them in a easy way. And later on we will be discussing about the function of blood. So let us start about platelets or thrombocytes. Thrombocytes or let's call that platelets. See, the very first concept, you will remember that platelets are only and only found in mammals. Platelets are the blood cells which are only and only found in mammals. In other vertebrate like that of fishes, reptiles, amphibians and birds, there are certain other cells whose shape is like platelet, and we call that spindle cells, and who also perform the function like that of platelet, that is they are also involved in blood clotting, but we don't use the term platelet there. So platelets are the cells which are only and only found in mammal, despite of the fact that certain other cells which are like platelets and they are like the shape of platelets and they also perform the function like that of platelet are also found in other vertebrate. So first the definition, or first this concept that platelets, they are found only in mammals. The very first thing you will remember about platelets, that they are found only in mammals. In other vertebrates, there are certain cells present in the blood, and those cells are named upon their shape. The name of these cells are spindle cells. In other vertebrate, spindle cells are found in blood, and they also perform the function like that of vertebrate. So in other vertebrates, spindle cells are present in blood, which also perform the similar function, but they are not named as platelet, they are named as spindle cells. So a cell in other vertebrate which is almost same like that of platelets is spindle cells. तो जब भी आप कभी अगर आपको मौका मिला, अगर आप जूलॉजी वगैरह में ग्रेजुएशन या मास्टर्स पढ़ना चाह रहे हो, तो यू आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट आर द स्पिंडल सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ अदर वर्टिब्रेट देन मैमल. So platelet is the third cell or third major type of cells present in the human blood. So one by one we will be learning about the features of platelet. Do you know what is the size of platelet? When we used to remember the size of platelet, I used to remember I can put several platelet inside RBC. It simply means platelets are smaller than RBC, or platelets are the smallest cell. Actually platelets are not true cell. Platelets are not true cell, but the cell which are the precursor of platelet, or the cells from which platelets are formed, they were true cell. But we consider them as cells because they are having certain organelle like endoplasmic reticulum. I will be telling you all the thing. So first, size of platelet, and remember please you can put almost 4 platelet inside one RBC. So the range of the platelet size is about 2 to 3 microns. The size of platelets are very smaller than RBC as well as WBC, and platelets are only about 2 to 3 micron. RBC is about 70 to 8 micron. So I can put 4 platelet in our RBC. I can put 4 platelet in one RBC. So platelets are very smaller, about 2 to 3 micron, or they are smaller than RBC and they are smaller than WBC. So size. Now
Coming on the lifespan, any idea how long the platelet survives? As far as the lifespan is concerned, many of the physiologists, they consider that platelets survive for a week. The lifespan of platelet is generally, in higher study you will learn that we can say they are surviving from a week up to 10 days. But to be very specific, up to your need level, you have to remember that the lifespan of a platelet is about 2 to 5 days, less than a week. So lifespan I am going to mention is about 2 to 5 days. जो आपके ल्यूकोसाइट थी वो few hours, majority of them were surviving for few hours. There are certain which are surviving for a week, or there are others which are surviving as long as you survive. But platelets are the one which survive only for 2 to 5 days, let's say less than a week. So for example, today your platelet count is down, you are having certain medication and you are going for other test. So it depends कि due to that medication new platelets are formed, and जो existing one थी वो ख़त्म ही हो गई, depending upon आप कितने दिनों बाद टेस्ट करा रहे हैं. तो size of platelets is about 2 to 3 micron. Lifespan they survive up to 2 to 5 days. When we talk about the lifespan of when we talk about the number of platelet, easy way to remember the number of platelet is they are more than WBC and less than RBC. The number of platelet they are more than WBC and they are less than RBC. जब प्लेटलेट का नंबर काउंट करते हैं तो एग्जैक्ट जो डाटा आपको याद रखना है डेट इज 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, या इसका एक रेंज वैल्यू लिख ले अगर, जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो तकरीबन 2.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है. तो जो प्लेटलेट का रेंज होता है वो 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm वेरी करता है, और अगर दोनों का एवरेज वैल्यू निकाल के चले तो इट इज़ अबाउट 2.5 लाख पर क्यूबिक mm. सो प्लेटलेट्स आर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, लाइफ स्पैन इज अबाउट 2 to 5 days. The number is between it is more than WBC and less than RBC, that is 1.5 lakh to 3.5 lakh per cubic mm, or I will say on an average we are having 2.5 lakh of platelet per cubic mm of our blood. Now two conditions, you might be having an increase in the number of platelet and you might be having a decrease in the number of platelet. If there is an increase in number of platelet, we call that condition as thrombocytosis. The condition which represent a increase thrombocytosis. Thrombocytosis is a condition when there is a increase in platelet count, increase in platelet count. And if you are having a lower platelet count, we call that condition as thrombocytopenia. जैसे WBC में बताएं ल्यूकोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ऐसे ही यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज डिक्रीज्ड platelet count. Now first let me discuss in brief why there is a increase in platelet count and what occurs when the platelet count in somebody's blood increases. There are so many reasons which can lead to the increase in platelet number. The most exact or most common reason is an abnormal cell present in bone marrow. There are certain abnormal cells which are present in blood marrow. They are not in bone marrow, not blood marrow, in bone marrow. They are not responding to cellular signals and they have been multiplying in an uncoordinated way. So when the division of bone marrow cells, see platelet are also formed by the cells of bone marrow. As I told you, all the blood cells are formed by bone marrow. When those cells which are giving rise to platelet, they are not normally controlled by cell signaling, they start dividing abnormally. That result in an increase in platelet count. Now our basic knowledge tell us that platelet are the cell which are involved in blood clotting or blood coagulation. Other name for blood coagulation is blood clotting. So if there is a patient and that patient is having
due to these abnormal cell present in bone marrow, that patient is having high platelet count. There would be high division of bone marrow cell that result in high platelet count. What would happen? This high platelet count can result in the formation of clot inside blood vessel. They can form a clot inside blood vessels. And if an unwanted clot is formed inside blood vessel, what would happen? Just imagine that condition. There are certain special blood vessels which are supplying blood to the muscles of heart. Special blood vessel which are supplying oxygen to the wall of heart. If there is a clot formed there, what would happen? These wall of heart would stop the cardiac muscle of the ventricle and cardiac muscle of the aorta, to be very specific, cardiac muscle of the ventricle. They would stop getting oxygen. If they are not getting enough oxygen, they would start dying. And death of heart muscle are referred as to heart attack. So these condition, this clot which is formed, it can lead to heart attack, the very first condition. और क्या हो सकता है? अगर क्लॉट वगैरह फॉर्मेशन हो गया तो हार्ट अटैक आने के साथ साथ जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है टू द ब्रेन वो कम हो जाएगा. अगर क्लॉट वगैरह बन गया तो जो भी आउटपुट ऑफ ब्लड है दैट वुड मिनिमाइज. अगर आउटपुट ऑफ ब्लड मिनिमाइज हो गया तो ब्रेन के पास ब्लड जाना कम शुरू हो गया. और जब हार्ट ब्रेन के पास ब्लड कम भेजता है तो ब्रेन के अंदर अनकॉन्शियसनेस आनी शुरू हो जाती है. उसको बोलते हैं स्ट्रोक. आगे चल के पढ़ोगे व्हाट इज ए स्ट्रोक. It can result to heart attack or even a stroke could be there. So one of the reason of heart attack and stroke could be thrombocytosis. Is that clear? One of the reason of heart attack or stroke could be thrombocytosis. So it is not a very good thing to have a high platelet count. Mainly vitamins, multivitamins are the things which are involved in the formation of platelet as well, as they control the maturation of WBC and RBC. They also control the formation of platelet. And if you are having a lot of vitamin, high vitamin diet, what could happen? You can get this condition as well. So be aware with your platelet count or with the food which you have been taking which can increase platelet count. There are so many foods. Coming on this condition, thrombocytopenia. When there is a decrease in the platelet count, we call that condition as थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्लॉटिंग डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. इट कैन रिजल्ट इन डिफेक्ट ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन. वहाँ पे अनवांटेड क्लॉट बन रहा था और यहाँ पे जब जरूरत है तब भी क्लॉट नहीं बनेगा. अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पेशेंट. दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए पेशेंट. दिस इज द मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट. एंड ड्यू टू सर्टेन लीकेज, ड्यू टू सर्टेन ब्लड स्टार्ट लीकिंग आउट. So what should be the natural defense mechanism of body? There should be formation of a plug there. So this blood losing of blood can be controlled. And if blood loss is not controlled, what would happen? A lot of blood would be lost. Or daily in our vasculature system, about 10,000 of micro punctures are made, and they are successfully repaired by the binding of platelet. Platelet go and keep on repairing all the punctures there. So one of the major function which we are going to learn in platelet, that they are involved in the clotting of blood. And if there is a defect of blood clot formation, what would be the result? There would be less loss of blood or more loss of blood. Answer to that question would be there would be excessive loss of blood from the body. There would be excessive loss of blood from the body. ठीक है बच्चों. अच्छा, आप ये ना कॉमन सा कंसेप्ट है कि दे आर सर्टेन वायरल इन्फेक्शन. एक बहुत कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है डेंगू. और डेंगू वगैरह में जो है जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाता है, तो आपका प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है. प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू होगा तो जितने भी आपके ये इंटरनल माइक्रो पंचर्स है ये रिपेयर नहीं होंगे और इंटरनली ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जाना शुरू हो जाएगा. उसको बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग और हीमोरेज. इंटरनल ब्लीडिंग और हीमोरेज. हीमोरेज जब भी वर्ड पढ़ोगे तो उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग. तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है. ठीक है बच्चों. तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज अबाउट 2.5 लाख पर क्यूबिक mm.
ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो क्रिटिकल काउंट होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, अगर आगे डिफाइन करूँ, लेट्स से आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, प्लेटलेट वगैरह कम हो गया, आपकी प्लेटलेट काउंट 1 लाख के आसपास है, 80,000 के आसपास है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रिटिकल पॉइंट मेडिकल साइंस ने सेट किया हुआ है, डेट इज़ 40,000। अगर प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम हो गया तो उसको बोलते हैं डेट इज क्रिटिकल काउंट। अगर क्रिटिकल काउंट की बात करें, क्रिटिकल काउंट वैसे तो 80,000 पे आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए, बट जो क्रिटिकल काउंट होता है जिससे कम होने के बाद आपको बहुत ही सीवियर पैथोलॉजी होने वाला है, डेट इज क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट। उसको हम लेके चलते हैं 40,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स कम हो गए हैं और वो क्रिटिकल काउंट को भी क्रॉस कर गया, लेस देन 40,000 हो गया है, अब उसमें क्या होगा? देखिए मेरा जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स डिफाइंड बाउंड्रीज में हैं, तो मेरा ब्लड वगैरह लीक नहीं करता है। अगर क्रिटिकल काउंट से कम प्लेटलेट हो गया तो ब्लड वेसल से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा और स्किन के ऊपर ना रेड स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं, रेड रैशेज बन जाते हैं। तो रेड स्पॉट और रेड रैशेज विच अपियर ऑन द स्किन, the red spot or red rashes which appear on the skin due to low platelet count, इस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर के लिए वर्ड यूज करते हैं परप्यूरा डिसऑर्डर। तो क्रिटिकल काउंट इज 40,000 पर क्यूबिक mm। लेस देन क्रिटिकल काउंट, इफ द काउंट इज लेस देन क्रिटिकल, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेड स्पॉट और रैशेज ऑन द स्किन। अब ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें स्किन के ऊपर रेड स्पॉट या रैशेज आ जाते हैं ड्यू टू लो प्लेटलेट काउंट, इस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर के लिए वर्ड यूज करते हैं परप्यूरा डिजीज। तो अगर आपसे सवाल कभी पूछा जाता है, पहले तो ये पूछते हैं कॉमनली परप्यूरा डिजीज इज रिलेटेड विद, आप आंसर कर देंगे लो प्लेटलेट काउंट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन परप्यूरा डिजीज? द काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इज लेस देन द क्रिटिकल नंबर and there is the formation of red spot and there is the formation of rashes on the skin। rashes and red spot आने शुरू हो जाते हैं, वो ऐसे गायब नहीं होंगे जादू से, उसको बोलते हैं परप्यूरा डिजीज। सो परप्यूरा डिजीज इज अ प्लेटलेट डिफेक्ट व्हेन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज लेस देन 40,000। आर वी डन अप टू हियर? सो प्लेटलेट का साइज 2 to 3 माइक्रोन, प्लेटलेट का नंबर एवरेज 2.5 लाख, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लाइफ स्पैन इज अबाउट 2 to 5 days। अब आते हैं प्लेटलेट के स्ट्रक्चर के ऊपर। प्लेटलेट का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है वो पढ़ लेते हैं। और यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि प्लेटलेट्स एक्चुअल सेल नहीं होती हैं, प्लेटलेट्स सेलुलर फ्रेगमेंट हैं। सेलुलर फ्रेगमेंट का मतलब ये हुआ कि वो सेल के कुछ टुकड़े हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है और उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, पर उनको एज ए सेल क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो प्रीकर्सर सेल थी वो ट्रू सेल थी। तो उन ट्रू से अच्छा, ये जो फ्रेगमेंट है ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ सेलुलर ऑर्गेनल भी इनके अंदर होते हैं, इसलिए इनको वेल डिफाइंड सेल ना कहकर अनऑर्गेनाइज सेल ऑफ ब्लड कह देते हैं। तो जब मैं बात करूँगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लेटलेट, तो मैं शुरू करूँगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके पास न्यूक्लियस कैसा होता है। Worth mentioning here, they are not nucleated, they are non-nucleated cell। तो RBC के पास भी न्यूक्लियस नहीं था और प्लेटलेट के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और मैं ये लिख देता हूँ, प्लेटलेट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेल, दे आर रियली, एक्चुअली प्लेटलेट्स आर द सेलुलर फ्रेगमेंट। दे आर सेलुलर फ्रेगमेंट rather than cellular fragment rather than ट्रू सेल्स। अब ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आई रियली वांट यू गाइस कि ये याद रखना आप कि विच ऑफ द ब्लड सेल्स आर नॉट ट्रू सेल्स एंड दे आर रियली द सेलुलर फ्रेगमेंट। आंसर टू दैट क्वेश्चन शुड बी प्लेटलेट। जब प्लेटलेट वगैरह का शेप देखते हो आप तो वो ओवल या डिस्क लाइक हो जाती हैं। प्लेटलेट्स आर आइदर ओवल शेप और दे आर डिस्क लाइक शेप और बाई कन्वेक्स होती हैं। दे आर ओवल और डिस्क लाइक and they are by convex।
RBC was biconcave non-nucleated cell, platelets are biconvex. अच्छा, प्लेटलेट्स का रिप्रेजेंटेशन करूँ, प्लेटलेट्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है कुछ ऐसा, जिसके अंदर कुछ डिस्क लाइक सेल भी दिखाई देते हैं। तो ये जो मास ऑफ सेल है, सेलुलर फ्रेगमेंट्स टू बी वेरी एग्जैक्ट, ये क्या है बेटा, ये प्लेटलेट्स हैं। सो प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल, दे आर नॉट न्यूक्लिएटेड एंड दे आर सेलुलर फ्रेगमेंट रेदर देन ट्रू सेल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्लेटलेट्स देखने में कैसी होती है, दे कुड बी ओवल और दे कुड बी फ्लैट एज वेल। प्लेटलेट कुड बी ओवल और दे कुड बी फ्लैट एज वेल। दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल, नो फन इन टेलिंग। दरअसल होता क्या है कि प्लेटलेट को डिफाइन करते हैं डेट दीज आर द सिंपल बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लेटलेट के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं सेलुलर फ्रेगमेंट के साथ साथ, दीज आर सिंपली बिट्स ऑफ, बिट्स का मतलब यहाँ पे टुकड़े हुआ, बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है उसके कुछ टुकड़े हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स टू बी वेरी एग्जैक्ट, दे आर नॉट ट्रू सेल, दे आर द सेलुलर फ्रेगमेंट, और आई कैन से these are the bits of protoplasm which are bounded by a membrane, which are bounded by a membrane. So bits of protoplasm which are bounded by a membrane, they are referred as to platelet. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कुछ सेलुलर ऑर्गेनल के बारे में। देखो प्लेटलेट के पास ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होते हैं, और जो प्लेटलेट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें बहुत ही स्पेशल सा नाम देते हैं, उनको बोलते हैं डेंस ट्यूबुलर सिस्टम। मैं ये मेंशन कर देता हूँ, विद फ्यू सेल ऑर्गेनली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम of platelet is referred as to dense tubular system because they are the arrangement of tubes which are very densely strand. Arrangement of tube which are very endoplasmic reticulum in case of platelet is the arrangement of tubular structure, proteins, tubular proteins which are very densely strained. That's why we call that endoplasmic reticulum, dense tubular system, DTS. Simply DTS की बस याद रख लेना आप, ठीक है। तो प्लेटलेट्स प्रोटोप्लाज्म के छोटे टुकड़े होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड है, और उसमें कुछ सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज डेंस ट्यूबुलर सिस्टम। प्लेटलेट्स के अंदर ना उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कुछ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। देयर आर सर्टेन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स व्हिच आर फाउंड व्हिच कैन बी स्ट्रेन्ड बाय ए बेसिक डाई। दीज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कैन बी स्ट्रेन्ड बाय ए बेसिक डाई। और ये जो बेसिक डाई से स्ट्रेन हुए तो बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स हुए। ये जो बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं प्लेटलेट के अंदर, ये न्यूक्लियस का अपीयरेंस देते हैं शुरू में, बाद में पता चला वो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, एंड इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर दैट दीज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कैन बी स्ट्रेन्ड बाय ए बेसिक डाई। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन cytoplasm, they can be strained by a basic dye. That's why we call that basophilic granule. So these basophilic granule which are present in the center of platelet, they give the appearance of a nucleus. They give the appearance of a nucleus. तो बच्चों समझ में प्लेटलेट का स्ट्रक्चर वगैरह, ओके। देन प्लेटलेट के बारे में एक बहुत अच्छी बात, जो प्लेटलेट का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ना एक बहुत ही स्पेशल सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म में एक बहुत स्पेशल सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, इसलिए हमारे क्लोट वगैरह भी कॉन्ट्रैक्टाइल होने शुरू हो जाते हैं, और उस प्रोटीन का नाम होता है, द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज थ्रोम्बोस्थेनिन। थ्रोम्बोस्थेनिन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट। सो a contractile protein thromboस्थेनिन is found in cytoplasm of platelet. Worth mentioning here. Which of the contractile protein is found in the sarcoplasm? Answer to that question was actin myosin. Remember that मसल के अंदर एक्टिन मायोसिन बताया था। ब्लड सेल के अंदर या स्पेसिफिकली बात करें प्लेटलेट के अंदर कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन मस्ट बी थ्रोम्बोस्थेनिन। तो जो थ्रोम्बोस्थेनिन होती है
That is the contractile protein which is found in the cytoplasm of platelet. Are we done up to here? यहाँ पे बता देता हूँ मैं फॉर्मेशन, प्लेटलेट वगैरह बनती कैसे हैं. तो ऑब्वियसली जो प्रीकर्सर सेल होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, बोन मैरो में. अब वो बोन मैरो की सेल जो प्लेटलेट को बनाती है उनको बोलते हैं बेटा मेगा कैरियोसाइट. सवाल पूछा गया है इसके ऊपर भी. सो दीज मेगा कैरियोसाइट्स cells which are having a large nucleus. Megakaryocytes are the very large cell present in bone marrow, and these megakaryocytes get burst, and after bursting cellular fragments are formed which we call platelet. So these megakaryocytes, these are very large cell in bone marrow. They are type of myeloid cell. They actually break down, and when they break down, cellular fragments are formed. इस सेल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उन सेलुलर फ्रेगमेंट को बोलते हैं, इसलिए थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे क्योंकि वो थ्रोम्बस दूसरा वर्ड होता है क्लॉट के लिए. तो क्योंकि क्लॉट बनाती है इसलिए थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इनको. तो उनको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटिलेट. तो प्लेटिलेट्स की जो प्रीकर्सर सेल होती हैं, जो माइलॉइड सेल, वो माइलॉइड सेल जो प्लेटलेट को बनाती है उनको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट. सो मेगाकैरियोसाइट आर द लार्ज cell in bone marrow which break up into cellular particles, and they give these cellular fragments which are formed by the breaking down of megakaryocyte, they are referred as to platelets. Formation of platelets के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट. तो इस प्रोसेस का नाम होना चाहिए थ्रोम्बोपोइसिस. तो जो थ्रोम्बोपोइसिस होता है बेटा वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट के लिए वर्ड. मेगाकैरियोसाइट्स जो बड़ी बड़ी सेल होती है बोन मैरो में वो फ्रैगमेंट वगैरह में टूट जाती हैं और उन फ्रैगमेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्लेटलेट. तो कौन बनाता है प्लेटलेट? मेगाकैरियोसाइट. प्लेटलेट कैसी होती हैं? वो मेनली आपकी डिस्क लाइक या ओवल शेप होती हैं, सेलुलर फ्रैगमेंटेड ट्रू सेल नहीं होती हैं. प्लेटलेट का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके लिए डेंस ट्यूबुलर सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं. प्लेटलेट के अंदर सिक्योरिटी ग्रेन्यूल जो बेसिक डाई को रिटेन कर लेते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स वर्ड यूज़ कर लेते हैं. और वो जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं वो आपका कुछ फैक्टर बनाते हैं जो क्लोटिंग में हेल्प करेंगे. मैं एक फैक्टर का नाम बताऊंगा अभी. ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 3 होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, अभी आगे लिख दूंगा. और वो अपीयर करते हैं, दे आर लाइक न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के साथ कन्फ्यूज मत होना, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल. इतना समझ में आया प्लेटलेट के बारे में. अब आ जाते हैं प्लेटलेट के फंक्शन पर. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ प्लेटलेट में बस इतना ही पढ़ना था. लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, and then I am going to compare all the blood cells which we have discussed in our last 3 lectures. All right, so function of platelet. What should be the first function of platelet? The most common function, और जो आपको याद रखना ही रखना है, वो है platelets are the one which are involved in the clotting of blood. जब भी आपको कोई इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कट लग गया तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा. प्लेटलेट रिलीज़ करती है और क्लोटिंग फैक्टर कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं. उनमें से एक केमिकल का नाम होता है प्लेटलेट फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में. सो फर्स्ट, ड्यूरिंग एन इंजरी जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं, ऑब्वियसली अगर इंजरी हुई तो प्लेटलेट भी डैमेज हुई होंगी. डैमेज प्लेटलेट्स secretes several chemical. The most important is platelet factor 3. उन केमिकल के लिए वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट फैक्टर 3, और इसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. द नेम इज THROM थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो जब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पढ़ाऊंगा मैं तो आप याद रखना फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन. ना याद रखें तो मैं बता ही दूंगा वहाँ पे. तो जब भी आपको कोई इंजरी हो जाती है तो जो डैमेज प्लेटलेट है वो कुछ केमिकल रिलीज करती है. जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है वो प्लेटलेट फैक्टर 3 है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द वन विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. तो
तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है, जब भी आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो एक्सिस ऑफ ब्लड के लीकेज को रोकता है प्लेटलेट। प्लेटलेट आर द ब्लड सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स आर द ब्लड सेल विच आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। जो वेरी स्पेसिफिक फंक्शन है वो ये हो गया। तो अगर आपसे स्पेशली कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, आप झट से उसको कह देना कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सेकेंड मैं आपको बताऊं कि प्लेटलेट रिपेयर भी करता है। प्लेटलेट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो जब भी आपको इंजरी वगैरह हुई है और जो भी एंडोथेलियल सेल इंजर्ड हो गई है, तो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो एंडोथेलियल सेल इंजर्ड हो जाती है, उन इंजर्ड एंडोथेलियल सेल के ऊपर एक प्लेटलेट प्लग बनाता है। देखो प्लेटलेट के अंदर ना टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी म्यूकोलेजियस सब्सटेंस या जेलेटिनियस मटेरियल के ऊपर स्टिक कर जाए। तो आपके पास जो मैं बता रहा था वो जो पंचर्स आपको हो रहे थे, लीकेज जो हो रहे थे, तो जहाँ जहाँ पे लीकेज होता है वहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन जाता है। तो प्लेटलेट प्लग बनने की वजह से प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग तो कर ही रहा है, क्लॉट वुड बी फॉर्म्ड हेयर, जो प्लेटलेट प्लग बना है उससे भी लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता। सो सेकेंड, दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड in the repairs damaged endothelial cell of blood vascular system. Repair endothelial cell of blood vascular system. How they repair? They form a platelet plug. And how they form platelet plug? As they have a property to stick with endothelial cell. In higher classes you will learn how in normal condition these platelets are not sticking with endothelial cell. Simply these cells are making certain factor, the squamous cell or endothelial cell are making certain factor which does not allow platelet to stick, and when these cells are damaged those factors are not formed, so these cells they start sticking there, and these after the sticking of platelet here a plug is formed. तो अगर स्टिक कर जाता है तो प्लग बनेगा, और जब चीज़ें रिलीज कर रहा है तो क्लॉट बनेगा। प्लेटलेट प्लग और ब्लड क्लॉट दो अलग अलग चीज़ होती है। तो ब्लड कोगुलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लॉट का भी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ ये प्लेटलेट प्लग भी बनाती है, बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू गेट स्टिक टू द एंडोथेलियल सेल। सो नॉर्मली एंडोथेलियल सेल कुछ फैक्टर बनाती है, मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा, बट लेट मी टेल यू, अ नॉर्मल एंडोथेलियल सेल इज मेकिंग सर्टेन प्रोस्टाग्लैंडिन. A normal endothelial cell also used to produce certain enzymes like ADP dephosphatase, and a normal endothelial cell also used to produce nitric oxide or NO, and these are the factor which does not allow platelet to adhere here. As endothelial cells are damaged, platelets start adhering or sticking there, but you don't need to remember this right now because that is little bit higher concept. सो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ लिया साहब प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, क्या करती हैं, और कम हो जाए तो क्या होता है और ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है. आई होप आई मेड अ वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट प्लेटलेट्स. आई मेड अ वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट प्लेटलेट्स. दैट इज अबाउट योर ब्लड सेल्स. अब ऑन ए रिविजन हीमोपोइसिस के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा, कि उससे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं हीमोपोइसिस डिस्कस कर लेता हूँ. हीमोपोइसिस का मतलब था बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल. हीमोपोइसिस का मतलब होता है, हीमोपोइसिस इज ए प्रोसेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल. जितने भी ब्लड सेल आपने पढ़े, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो. हीमोपोइटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जहाँ पे ब्लड सेल बनती हैं. ब्लड सेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरबीसी. हीमोपोइटिक टिश्यू आर द टिश्यू विच वे ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, हीमोपोइटिक टिश्यू और लिम्फोइड टिश्यू दो अलग अलग चीज़ है. लिम्फोइड टिश्यू वो है जहाँ पे लिम्फोसाइड बनती है, और हीमोपोइटिक टिश्यू वो है जहाँ पे ब्लड सेल बनती है. सबसे पहले आरबीसी कौन बनाता है? यॉर्क सैक. अगर मैं आरबीसी की बात करूँ तो यॉर्क सैक, लीवर स्प्लीन बिफोर द बर्थ और बोन मैरो आफ्टर द बर्थ. और उसमें डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइड भी ऐड कर लूँ तो मेरे जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो भी बनाते रहते हैं. फिर फ्रॉग का केस पर पूछ लेते हैं. देखो फ्रॉग के अंदर जब फ्रॉग एक्टिव रहता है तो उसकी जो बोन मैरो है वो आरबीसी बनाती है, और जब फ्रॉग समर स्लीप या विंटर स्लीप पे गया हुआ है, जब वो एक्टिव लाइफ नहीं ले रहा है, तो उसका भी स्प्लीन, उसका लीवर भी बनाता है,
उसका लिम्फ नोड भी बनाता है या आरबीसी वगैरह बनाते रहते हैं। टेडपोल लार्वा में प्लीज पे अटेंशन, टेडपोल लार्वा में जो उसका किडनी होता है वो हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है। इन टेडपोल लार्वा फ्रॉग किडनी एक्ट एज हीमोपोइटिक ऑर्गन। तो एडल्ट फ्रॉग में किडनी नहीं बनाता है, सिर्फ टेडपोल लार्वा में बनाता है। एडल्ट फ्रॉग के दो लाइफ फॉर्म, जब वो एक्टिव है तो बोन मैरो, और जब वो डोमेंसी वाली स्टेज में है, चाहे वो समर स्लीप हो या विंटर स्लीप हो, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तो वहाँ पर उसका बोन मैरो ना बनाकर उसका लीवर, स्प्लीन और उसका लिम्फ नोड वगैरह बनाते रहते हैं। ह्यूमन का जो आपको याद रखना है, मैं पहले भी ये लिखवा चुका हूँ इसलिए मैं रिवाइज कराता हूँ कि ह्यूमन के केस में एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी के फॉर्मेशन, यॉर्क सैक, लिवर एंड स्प्लीन, एडल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका बोन मैरो। लिम्फोसाइट ऐसी सेल होती है जो बोन मैरो के बाहर भी बन जाती है, वो आपके थाइमस में बन जाती है, स्प्लीन में बन जाती है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस, इन सब में बन जाएंगी। ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में। अब जितने भी 3 लेक्चर में हमने ब्लड सेल के बारे में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट अस मेक अ टेबल नाउ एंड लेट मी टेल यू हाउ you are going to remember about the data of these cells. So RBC, WBC और प्लेटलेट, उन सब का ना एक टेबल बना लेते हैं और उसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो हम पॉइंट आउट करते चले जाएंगे कि भाई उनका साइज़ क्या होता है, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है और क्या चीज़ करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें रिवाइज करा दूँगा, या बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी ही है बिल्कुल, वो सब रिवाइज करते चले जाएंगे। So a table for blood cell. So it's a kind of revision of your all platelet, WBC and RBC. जो पहला हम टेबल का सेक्शन, तो मैं आपके लिए सजेशन होगा आप इस चीज़ को एक नए पेज से शुरू करें और पेज कॉपी को ऐसे ना करके दूसरा जो लैंडस्केप मोड होता है उसमें बनाना शुरू करें ताकि ज़्यादातर डाटा आप कवर कर लें। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक कॉलम और इस कॉलम में मैं नेम ऑफ सेल लिखता चला जाऊँगा कि भाई सेल है उसका नाम क्या है और उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो भी उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर। तो मैं तो ना स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी इसको इरेज कर करके बनाता जाऊँगा। आप कंजूसी मत करना प्लीज़ पेपर में, आप अपना पेपर यूज़ करने में कंजूसी ना करें। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आउट करेंगे वो करेंगे उनका साइट ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई वो बनती कहाँ पर है, तो इससे आप अंदाज़ा भी लगा लेंगे। फिर उसके बाद उनका हम लिख लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज, जो इम्पोर्टेंट है याद रखना। और परसेंटेज के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस वगैरह आ जाएगा, साइट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, परसेंटेज में हम नंबर वगैरह भी इंक्लूड कर लेंगे और बाद का जो सेक्शन है वो फंक्शन के लिए रख देते हैं। बाद का जो सेक्शन है दैट इज़ फॉर फंक्शंस हियर। सो लेट अस रिवाइज फर्स्ट अबाउट RBC. What is the other name of RBC? Erythrocytes. स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी बताना शुरू कीजिए RBC के बारे में, जो आपने पढ़ा है। RBC का साइज कितना होता था, 7 to 8 माइक्रोन्स। इजी टू रिमेंबर, याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं ये इतना वाइड होता है और जब थिकनेस की बात करते हैं तो RBC जस्ट 1 to 2 माइक्रोन थिक। जब थिकनेस की बात करते हैं RBC जस्ट 1 to 2 माइक्रोन थिक। तो वाइडनेस और थिकनेस दोनों कर दी। RBC का शेप कैसा पढ़ा है आपने, सर्कुलर, बाइकनकेव एंड दे वर नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियस। सो डीन्यूक्लिएटेड, कौन सी स्टेज में मिस हुआ था न्यूक्लियस, रेटिकुलोसाइट स्टेज, तो वो इमेच्योर थी। सर्कुलर एंड बाइकनकेव। बाइकन्वेक्स एंड ओवल किसके पास थी, इन केस ऑफ कैमल एंड लामा, साउथ अमेरिकन कैमल, बाकी किसी के पास नहीं थी। इतना समझ में आया। तो भाई इनका 7 to 8 माइक्रोन वाइड, 1 to 2 माइक्रोन थिकनेस, डीन्यूक्लिएटेड होती है, सर्कुलर होती है, बाइकनकेव होते हैं। और इसमें मैंने ये भी बताया था एंड दे आर विदाउट सेलुलर ऑर्गेनेली। ये हो गया उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, RBC बनती कहाँ कहाँ पर है, तो मैं सारे मेंशन कर देता हूँ। यॉर्क सैक, लिवर, स्प्लीन। ये कौन सा डाटा है, बिफोर बर्थ, एंड RBM, रेड बोन मैरो, आफ्टर बर्थ।
What percentage of your blood is RBC? Remember hemocrite volume 99%. What is the total number of RBC? 4.5 to 5 million in case of females per cubic mm, and 5 to 5.5 million per cubic mm in case of males. So males are having more RBC than females. Remember, what are the functions performed by RBC? First function of RBC is transportation of gases. First function of RBC, which worth mentioning here, is transportation of gases. RBC transport oxygen as well as transport carbon dioxide. In breathing and exchange of gases, I will tell you 97% of oxygen is transported by RBC. And about when we talk about transportation of carbon dioxide, about 23% of carbon dioxide is transported by RBC. वो breathing and exchange of gases का है. फिर RBC के बारे में एक चीज़ और याद रखना, आपने ना पढ़ा है, जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो ब्लड बफर की तरह काम करते हैं. RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्सीलेंट एसिड बेस बफर होता है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एक्सीलेंट एसिड बेस बफर. तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही पढ़ेंगे ये चीज़ भी कि भाई कैसे हीमोग्लोबिन H+ आयन को होल्ड कर लेता है. और जब तो H+ आयन आर द वन विच आर गोइंग टू अफेक्ट द pH हियर. तो हीमोग्लोबिन कीप ऑन होल्डिंग एंड कीप ऑन रिलीजिंग H+ आयन एट डिफरेंट साइट. तो कैसे वो pH को मेंटेन करता है वो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे. तो जो पहला सेल हमने पढ़ा उसका डाटा आपके पास क्लियर है. एर्थोसाइट्स, दिस इज द साइज हियर, अबाउट न्यूक्लियस, शेप एंड अबाउट देयर ऑर्गेनल. एंजाइम वगैरह होते हैं अंदर, वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेशन 99%, बाकी 1% में आ जाएंगी सारी. नंबर एंड फंक्शन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पढ़ते हैं WBC के बारे में. तो RBC इज डन. आई गेस आपने टेबल बना लिया होगा. आई एम गोइंग टू मेक द चार्ट ऑफ WBC नाउ, एंड सिमिलरली in the end I will be mentioning certain information of platelets as well. Similarly, after that I will be mentioning certain information of platelets as well. तो WBC का दूसरा नाम क्या पढ़ा था बच्चों आपने? ल्यूकोसाइट. What was the other name of WBC? ल्यूकोसाइट और WBC. फिर उसको क्लासीफाई किया था आपने ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट. पहले ए ग्रेनुलोसाइट से शुरू करता हूँ. फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद ए ग्रेनुलोसाइट. ओ अच्छा, WBC के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ या चल जाएगा? WBC वगैरह कैसी होती थी? पहली चीज़ करते हैं उनके न्यूक्लियस के बारे में. वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, उनमें HB नहीं होता है, विदाउट हीमोग्लोबिन. सेलुलर ऑर्गन होते हैं, आंसर इज यस. साइज कितना पढ़ा था WBC का? 12 to 20 माइक्रोन्स. माइक्रोमीटर और माइक्रोन्स जो मैं कह रहा हूँ. कलर कैसा होता है? सर दे आर कलरलेस एज दे आर नॉट हैविंग हीमोग्लोबिन. देन WBC वगैरह के बारे में अगर और चीज़ें बताऊँ मैं आपकी, न्यूक्लियस हो गया, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कलरलेस होती है. यही चीज़ें काफ़ी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें अगर आप पढ़ लो तो डैट इज़ ओके. फिर कलर वो मतलब WBC के अंदर जैसा न्यूक्लियस होगा, मल्टी लोब, सिंगल लोब, वो हम आगे पढ़ते चले जाएंगे. WBC देखने में कैसी होती हैं? वो क्या तो राउंडेड होती हैं या वो इरेगुलर इन शेप होती हैं. आइदर दे आर राउंडेड और दे आर इरेगुलर इन शेप. अब WBC कहाँ कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो के अलावा, रेड बोन मैरो प्लस जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, प्लस लिम्फॉइड ऑर्गन. जैसे रेड बोन मैरो भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन ही है. थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स. मैं लिम्फॉइड ऑर्गन के भी बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको एक्चुअली आज. जब लिम्फ पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा. कल पढ़ाऊंगा लिम्फ तो कल बता दूंगा. WBC कितना परसेंटेज बनाती है टोटल ब्लड का? एक्चुअली WBC इज़ लेस देन 1%, क्योंकि इसमें 1% में आपकी प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं. तो प्लेटलेट्स प्लस WBC इज़ 1%. तो WBC इंडिविजुअली मेक लेस देन 1%. अच्छा, नंबर ही मेंशन कर देते हैं ना. व्हाट वाज द नॉर्मल नंबर ऑफ WBC? 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm. वैसे तो 4 to 11 बताया था, पर नॉर्मल जो NCERT वाला डाटा याद रखना वो ये है. एंड व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय WBC? WBC act as soldier, WBC act as scavengers, and WBC also have certain defensive nature. Soldiers
scavengers and defensive nature. तो वन बाय वन WBCs को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट में कौन सी पढ़ाई थी? मैं दो पढ़ाई थी, अगर मुझे याद आ रहा है तो। मैंने पढ़ाई थी आपको लिम्फोसाइट के बारे में, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाई थी क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में और मोनोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा था? नो फन इन टेलिंग, राउंड एंड लार्ज न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म कैसा था बच्चों इसमें? स्कैंटी साइटोप्लाज्म, क्योंकि ज़्यादातर एरिया में न्यूक्लियस वगैरह ही था। तो स्कैंटी साइटोप्लाज्म, लार्ज एंड राउंडेड न्यूक्लियाई लिम्फोसाइट का फीचर हो गया। जब साइज़ की बात करते हैं तो मैंने ये बताया भी था कि वो 6 माइक्रोन तक हो सकती हैं, पर इन जनरल उनका जो साइज़ लेके चलते हैं वो 6 to 16 माइक्रोन है, 10-12 माइक्रोन के करीब होती हैं आपके लिम्फोसाइट। तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, राउंड एंड लार्जर न्यूक्लियाई, स्कैंटी साइटोप्लाज्म, दे रेंज फ्रॉम 6 to 16 माइक्रोन। कहाँ बनती है? वो आपका लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर बनती है। दे आर द वन विच आर फॉर्म्ड इन लिम्फॉइड ऑर्गन। तो बोन, रेड बोन मैरो, और बाकी कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन है? थाइमस, रेड बोन मैरो, थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं बच्चों। अगर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें हम, स्प्लीन, दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय lymph nodes, they are also produced by tonsils, they are also produced by pear patches. पेयर पैचेस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, टॉन्सिल्स हमारे थ्रोट में हो गए, लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी, स्प्लीन पैनक्रियाज के ऊपर होता है। तो अपार्ट फ्रॉम रेड बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स आर द ब्लड सेल विच आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अदर ऑर्गन्स। परसेंटेज की अगर बात करें तो दे वर अबाउट 20 to 25% ऑफ WBC, नॉट द कंप्लीट ब्लड ऑफ WBC। तो जितनी भी हमारे पास WBC उसका 20 to 25% इज लिम्फोसाइट। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट? आपको दो बताया था मैंने। लिम्फोसाइट के बारे में बताया था, दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। दे आर मोटाइल सेल, दे आर मोटाइल, दे आर नॉट फैगोसाइटोटिक, मोटाइल, नॉट फैगोसाइटोटिक, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बी सेल की जो प्लाज्मा सेल होती हैं, एंड टी सेल आल्सो किल ट्यूमर सेल, as well as T cell are also involved in rejection of organ transplantation। तो ये चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ये एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ खाली। ठीक है बच्चों, तो lymphocytes B cell and T cell, there are two type of lymphocyte, B lymphocyte mature in bone marrow, T lymphocyte mature in thymus, two type of B cell, plasma cell and memory cell, four type of T cell, T killer, T helper, T suppressor and T memory, राइट। ये हो गया लिम्फोसाइट के बारे में। नेक्स्ट जो दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट पढ़ी थी आपने, देवर मोनोसाइट। और मोनोसाइट के बारे में बताया था आपको कि भाई जो मोनोसाइट्स होती हैं उनका जो न्यूक्लियस है उसकी बहुत ही स्पेशल शेप होती है, एंड दे लुक लाइक किडनी और दे आर बीन शेप्ड। मोनोसाइट बाय साइज सबसे बड़ी WBC होती है। जितनी भी WBCs आप पढ़ेंगे तो साइज में सबसे बड़ा कौन सा है? मोनोसाइट। तो सेकंड मोनोसाइट ही पढ़ लेते, ये भी ए ग्रेनुलोसाइट ही है। इसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं होते तो हम इसको स्ट्रेन वगैरह भी नहीं करते हैं। तो जब स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पढ़ोगे मोनोसाइट का, दो बात याद रखना, दे आर लार्ज ऑफ ऑल WBC एंड दे आर हैविंग ए किडनी शेप और बीन शेप न्यूक्लियाई। लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। कितना साइज होता है इनका? तकरीबन 12 to 20 माइक्रोन ये वाली ही होती हैं। देन दे आर हैविंग अ बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियाई। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो। अच्छा, अगर कोई डाटा ना चेंज हो रहा हो तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द डाउट सेशन, राइट, माई मेमोरी सो बैड। परसेंटेज की अगर बात करते हैं 6 to 8% इज मोनोसाइट। और मोनोसाइट क्या करती है? वो स्कैवेंजर्स होती हैं। देखो, मोनोसाइट्स आर द मोटाइल एंड फैगोसाइटोटिक सेल, दे आर मोटाइल एंड फैगोसाइटोटिक, एंड आफ्टर स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज दे डेवलप्स इनटू मैक्रोफेजेस। एंड यू बेटर नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रो मतलब लार्ज, फेज माने ईटर।
तो वो सारी चीज़ को इनगल्फ कर जाती है. दे आर द वन विच यूज टू इनगल्फ सेल डेब्रिस एंड दे आर द वन विच यूज टू इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल. तो जितने भी पैथोजन वगैरह होती हैं उनको इनगल्फ कर जाती हैं. आई विल यूज द टर्म जर्म. दे यूज टू इनगल्फ जर्म्स एंड दे यूज टू इनगल्फ ऑल द सेलुलर डेब्रिस. दे आल्सो चेंजेस इनटू मैक्रोफेज. ये तो हो गया डाटा आपका उनका जिनके पास ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं थे. फिर अगर ग्रेन्यूल्स वाली डिस्कस करें हम, दोज विच आर हैविंग ग्रेन्यूलोसाइट, तो उसमें 3 बताई थी, बेसोफिल, बेन, ईस्नोफिल एंड न्यूट्रोफिल. तो पहले बेसोफिल के बारे में बता देता हूँ, फिर रिवाइज कर लेते हैं. बेसोफिल, फिर ईस्नोफिल और फिर न्यूट्रोफिल. तो बेसोफिल्स आर द वन विच आर बेसोफिल्स, these are the one which are having granules, granulocyte. अब बेसोफिल की अगर बात करें, आपको याद है कुछ बेसोफिल वगैरह का जो साइज ऑफ न्यूक्लियस था वो कितना था? बेसोफिल वगैरह का पहले बेसोफिल डिस्कस करें, पहले ईस्नोफिल, पहले एसिडिक वाले डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट ईस्नोफिल फर्स्ट, देन आई विल बी टेलिंग अबाउट बेसोफिल. कि मुझे ना वो डिफेंस देख के बार बार एलर्जीज वाली चीज़ याद आ रही है, तो मैं ईस्नोफिल बता देता हूँ. तो जो ईस्नोफिल्स थी उनका जो न्यूक्लियस होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट आई हैव टोल्ड यू द बाइलोब्ड न्यूक्लियस. ईस्नोफिल्स आर बाइलोब्ड. साइज उसका बताया होगा मैंने 10 to 14 माइक्रोन. सो दे आर हैविंग ए बाइलोब्ड न्यूक्लियस. साइज इज अबाउट 10 to 14 माइक्रोन्स. अच्छा, बाइलोब का मतलब क्या होता है? लॉब्स, देखो लॉब जो है ना, ग्रुप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ टिश्यू के लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं. इस ऑर्गन में इतने लॉब्स हैं, पर यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके जो कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस के 2 पार्ट हैं. न्यूक्लियस 2 अलग अलग स्वेलन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है. तो न्यूक्लियस एक ही होगा, उसके अंदर 2 लॉब्स होंगे. ठीक है. तो बाइलोब न्यूक्लियस होता है. कौन से डाई से स्ट्रेन करते हैं उसको? एसिडिक डाई. क्या नाम होता है उस एसिडिक डाई का? इयोसिन. सो सेल विद अ बाइलोब न्यूक्लियस कैन बी स्ट्रेन्ड बाय इयोसिन डाई. व्हाट इज द नेम ऑफ सेल? द नेम ऑफ सेल इज ईस्नोफिल. वेयर ईस्नोफिल्स आर फॉर्म्ड? बोन मैरो. ईस्नोफिल का जो फॉर्मेशन होगा डेट वुड बी बोन मैरो. ईस्नोफिल वगैरह कितने घंटे तक सर्वाइव करती हैं? बताया होगा शायद अबाउट 10 to 14 आवर्स. दे सर्वाइव अबाउट 14 आवर्स, राइट. मोसाइट वगैरह कितने घंटे तक सर्वाइव करती है? 10 to 20 आवर्स इन ब्लड. तो आई गेस ये चीज़ें मेंशन की हुई है मैंने. Then what is the concentration or what percentage of WBC? This is also of WBC, not total blood. What percentage of WBC is contributed by eosinophil? So अगर आपको याद हो, हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि WBC का eosinophil का जो परसेंटेज होता है वो 2 to 3% होता है. और eosinophil का रोल क्या पढ़ाया था? eosinophil are the major allergic mediator. They are not phagocytotic. They are not phagocytotic. They are involved in allergic response. They are involved in allergic reaction. तो ये हो गया बेटा आपका ईस्नोफिल के बारे में. फिर जो ट्राइलोब न्यूक्लियस वाली थी वो कौन सी थी? बेसोफिल. अगर बेसोफिल की बात करें यहाँ पर, बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा बताया था? ट्राइलोब्ड. वो कौन सी डाई से स्ट्रेन हो रही थी? मिथाइलिन ब्लू. मिथाइलिन ब्लू इज बेसिक डाई, इसलिए नाम दे दिया बेसोफिल. इयोसिन इज एसिडिक डाई, इसलिए नाम दे दिया ईस्नोफिल. जो बेसोफिल का साइज होता है वो भी तकरीबन आपका 10-12 माइक्रोन के करीब ही बताया होगा. बेसोफिल का जो साइज होता है डेट इज आल्सो अबाउट बेसोफिल इज 8 to 10 माइक्रोन. बेसोफिल इज 8 to 10 माइक्रोन. डू चेक दिस डाटा वंस, बट मुझे लगता है 8 to 10 ही पढ़ाया था. बेसोफिल भी आपकी कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में. अच्छा, अगर बेसोफिल के लाइफ स्पैन की बात करें कि बेसोफिल कितने घंटे सर्वाइव करती है, उनका जो सर्वाइवल लाइफ स्पैन है वो 10 घंटे के करीब ही होता है. तो हर 10 घंटे के बाद हमारी बेसोफिल वगैरह मतलब नई बेसोफिल बन जाती है. 0.5 to 1% किसका कंसनट्रेशन था? लेस देन 1% बेसोफिल. एंड बेसोफिल आर द वन क्या क्या सिक्रेट करती हैं? डेट सिक्रेट्स हिस्टामीन. हिस्टामीन इज ए वैसोडाइलेटर. हेपेरिन आ एंटीकोगुलेंट. सेरोटोनिन आ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. एंड अनदर लिटिल अमाउंट ऑफ ए वैसोडाइलेटर विच वी कॉल ब्रेडिकाइनिन. ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पज ये बताया. और जो लास्ट सेल थी आपकी
ग्रेनुलोसाइट में, वो सारे WBC में सबसे ज़्यादा अबंडेंट थी, वो सारे के सारे WBC में सबसे ज़्यादा अबंडेंट थी न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल को ही एग्जैक्टली हम कहते हैं बेटा PMNL। तो PMNL होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है बच्चों, अब इसका जो स्ट्रक्चर बताया था वो मल्टी लोब बताया था। PMNL जो होती है न्यूट्रोफिल, दैट इज मल्टी लोब्ड, दे आर हैविंग मल्टी लोब न्यूक्लियाई। तो मल्टी लोब न्यूक्लियस किसके पास होता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज न्यूट्रोफिल। जब इसके साइज वगैरह की बात करते हैं तो 10 to 12 माइक्रोन्स के करीब ही आता है। कहाँ बनती है? न्यूट्रोफिल्स, अगेन नो फन इन टेलिंग, न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। न्यूट्रोफिल वगैरह भी सर्वाइव करती है तकरीबन 12 घंटे के करीब। कितना परसेंटेज बता रखा है? मैक्सिमम 60 to 65% ऑफ WBC। एंड न्यूट्रोफिल्स आर द वन विच आर माइक्रोप्लिसमैन, इसी को कहा था ना, अगर आपको याद हो तो, माइक्रोप्लिसमैन ऑफ योर ब्लड। तो न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट फैगोसाइटोटिक, दे आर मोस्ट मोटाइल, सबसे ज़्यादा बेचैन यही रहती हैं, मोस्ट मोटाइल, दे आर द वन विच रीच्ड फर्स्ट एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो विच ऑफ द सेल्स रीच the very first time at site of infection? Neutrophil. And who follows neutrophil? Macrophages. And how they move? They move by amoeboid movement. So neutrophil and macrophages, they are the cells which shows amoeboid movement. ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके WBC के बारे में। लास्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल जो आज डिस्कस करनी शुरू की थी वो थी हमारी प्लेटलेट। तो एक प्लेटलेट का भी डाटा बना ही लेते हैं ना, लेट अस मेक ए डाटा ऑफ प्लेटलेट हेयर, ताकि हमारा ब्लड सेल वाला चार्ट हो जाए कंप्लीट और आपके ब्लड सेल आपको याद हो जाए ऑन योर फिंगर टिप्स। इफ यू टॉक अबाउट प्लेटलेट्स, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये तो आज फ्रेश पढ़ा हुआ, इसको फटाफट रिवाइज कर लो। कैसे कलर की होती है प्लेटलेट? वेरी सैडली टेलिंग यू दैट दे डू नॉट हैव एनी कलर, दीज आर कलरलेस। They could be rounded, they could be oval, they could be disc shaped, but they are not having any nucleus. They are non-nucleated, rounded, oval or disc shaped, non-nucleated cellular fragments. Who will tell me the size of platelets? Only those students which are very focused in that lecture. 2 to 3 microns. 2 to 3 microns is the size of platelet. कौन बनाता है प्लेटलेट? रेड बोन मैरो। कौन सी सेल बनाती है रेड बोन मैरो में? आंसर वुड बी मेगा कैरियोसाइट। तो रेड बोन मैरो मेगा कैरियोसाइट। कितना लाइफ स्पैन बताया? 2 to 5 days। ये भी लेस देन 1% में आ जाएगा। दिस इज लेस देन 1% ऑफ ब्लड, लेस देन 1% ऑफ ब्लड। तो platelet plus WBC were completely 1%. And what are the functions performed by platelet? The answer to that question is platelet help in blood clotting. तो which cell help in blood clotting? Answer to that question is platelet. ये हो गया बेटा ब्लड सेल का चार्ट कंप्लीट। अब ब्लड में ब्लड अभी आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे अगला लेक्चर लेना है आपका लिम्फ के ऊपर। और जैसे अभी ना हमारा टेस्ट 14th को है, तो आई एम थिंकिंग कि आपका ब्लड का और भी अगर कुछ पार्ट कवर हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। और बाद में न्यूरल टिश्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुपिंग भी इसी में ही पढ़ा दूँ मैं। इफ़ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड यू विल बी एबल टू आंसर, एंड एज वी आर हैविंग टाइम तो वो चीज़ भी कवर होती ही चली जाएगी, अदरवाइज फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम ही चाहिए होगा। ऑलराइट, सो व्हाट यू लर्न, what are the whole functions of blood? The last part of blood is what are the functions of blood? तो एक वन बाय वन आप जो है सेल्स को लेके इमेजिन करते रहिए। RBC का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, नो फन इन टेलिंग। ब्लड नॉट ओनली, देखो ब्लड इज द मेजर वैस्कुलेचर फ्लूइड इन आवर बॉडी, द मेजर वैस्कुलेचर फ्लूइड इन आवर बॉडी इज ब्लड। It not only transport gases, it also transport other thing. Food material कैसे transport होता है? Much of the food material is transported with blood.
हार्मोन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इवन हीट कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, आंसर वुड बी ब्लड. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल. तुम्हारा यूरिया बढ़ा हुआ है तो ब्लड में यूरिया है तभी तो बढ़ा है. नेक्स्ट फूड मटेरियल, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है किसी का, राइट. इवन हीट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. हीट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड. So blood not only transport hormone, excretory material, food material, but it is also a medium for the transportation of heat. Who provide you defense against infection? Answer to that question is blood. भाई WBC blood के अंदर ही ना, तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी ब्लड. सो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ डिफेंस. अच्छा, इफ़ यू आस्क मी, देखो हीट ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टेम्परेचर रेगुलेशन. Who regulate my body's temperature? Answer is blood. Blood plays a very important role in the temperature regulation. वैसे तो आप याद रखें शेवरिंग और जो स्वेटिंग है वो भी टेम्परेचर रेगुलेशन में, पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कौन करता है? ब्लड. वाटर बैलेंस कौन मेंटेन करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस. आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी ब्लड. तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, temperature regulation, water balance, even maintenance of pH. pH is also controlled by blood. pH maintenance, temperature maintenance, water balance, ये सब blood करता है. ठीक है. एक्सेसिव ब्लड लॉस को भी कौन प्रिवेंट कर रहा है? आंसर वुड बी ब्लड. इट आल्सो प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस. बट क्लॉटिंग का प्रॉपर्टी भी कहाँ पढ़ा? क्लॉटिंग इज अ प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन ब्लड. तो हीलिंग में कौन हेल्प करता है? डेट इज हेल्प इन हीलिंग. अब मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, वो सब चीज़ कंट्रोल कर लेगा. मेरे बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन है, उन सब फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन को कौन मेंटेन करता है? ब्लड. तो फंक्शन ऑफ ब्लड इज द मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन. इट इज द maintenance of physiological coordination. Is that clear? And here with this statement we complete our topic, first part of vasculature system, first part of vascular connective tissue, that is blood. Second part of vascular connective tissue, that is lymph, which it would be completed in a single lecture only. वो इतना डिटेल में नहीं है क्यों, सब चीज़ें तो ब्लड में पढ़ ली है. तो lymph would be discussed in next lecture, and then I will be telling you about blood grouping and blood clotting. That would be next 2 lectures as well. Please make it sure that you have been completing your lecture. You never know when your video would be private, and I assure you मैं किसी को वीडियो का लिंक नहीं दूंगा अब, because connective tissue तो बहुत दिन होगा मुझे पढ़ाते हुए. So if you have been relying on that कि we are going to download, no, these video will not be downloading. I will be changing the settings, right? Please get serious with your studies. This is all for today. Wish you a very good day. Take care, stay safe, and I hope to see you soon in your classes. Let's start counting your days. Take care. Goodbye. Class is dismissed.